Good morning, student. Today in our fourth standard, I am going to start your fifth chapter. We have up till now we have completed our 4 lessons. Okay. In our first chapter, we have studied about the life cycle of living organism. In second chapter, we discussed about the relationship between the different living organisms. And our third chapter was related with the storage of water. Fourth was about the fourth, it was about how we can make the water safe for drinking. Okay, so these were the 4 chapters. Now, fifth chapter again it is related with water. Water for every household. We all use water. We store the water for our different purpose. है ना. अभी देखो हम सबके घर में मोस्टली सभी के घर में बोरवेल होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए कहो या कुकिंग के लिए कहो या फिर ऊपर टेरेस पर हमारे एक टैंक बना हुआ होता है, तो घर में जितना भी वाटर हमें यूज़ करना है वो सारे वाटर यूज़ के लिए एक टैंक भर के रखा जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड. हर घर में वाटर की ज़रूरत होती है हर पर्सन को. देखो हम लोग उठते हैं, उठने के बाद हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने से लेकर नहाने तक, फिर उसके बाद कपड़े धोना, यूटेंसिल्स क्लीन करना, कुकिंग करना, वेजिटेबल्स बनाना, घर को क्लीन रखना, ऐसे हज़ारों काम हैं जिसमें हमें वाटर की बहुत बहुत ज़रूरत होती है. ओके, सो let us see how we store the water, which are the different utensils that are used for storing the water. Can you recall what are the different purpose for which we need water? ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसे कौन से वर्क है जिसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है? कौन से वर्क है जिसमें हमें वाटर की ज़रूरत होती है? तो बहुत सिंपल है. देखो, हमें वाटर कुकिंग के लिए चाहिए, बेदिंग के लिए चाहिए, फिर उसके बाद घर को क्लीन करने के लिए चाहिए, यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए चाहिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए चाहिए, प्लांट्स ग्रो करने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, फैक्ट्रीज़ में जो नोटबुक बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, सभी इसमें वाटर की बहुत ज़रूरत होती है. मतलब हमारा हर एक काम most of the work that we do in our day-to-day life, it is related or it requires some amount of water. Then next, can you tell? The picture below shows some containers used for storing water at home. Which of these have come into use more recently? यहाँ पर कुछ pictures दिखाए हुए हैं. So you see this. Some of them they were used in olden times and some of them they are used nowadays. For example, this type of copper vessels, earthen pots. Earthen pots now also we use, but copper vessels they have become rare. This is the stainless steel tank. In India, even still we use these tanks. In some offices etc. you can see such type of water bottles. Okay, this is the tank that is used for storing the water on the roof. Okay, roof tanks है ये, रूफटॉप टैंक्स, मतलब रूफ के ऊपर ये टैंक रखे जाते हैं और इसको भर के फिर उसका कनेक्शन हमारे बाथरूम में होता है, हमारे बेसिन में होता है, हर जगह पर उसका कनेक्शन दिया जाता है. So, which of these have come into use more recently? These plastic containers, they have become very common nowadays. What materials are used to make these different containers? अभी इसमें से earthen pot जो है वो किससे बनता है? मिट्टी के जो घड़े होते हैं जिसको हम मटका कहते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो मिट्टी से ही बने हुए होते हैं. फिर ये जो सुराही बाजू में और एक दिखाई दे रहा है वो भी मिट्टी से बना हुआ है. ये जो है ये प्लास्टिक बॉटल्स है. These two they are made of soil. This is plastic. ये प्लास्टिक से बना हुआ है. ये भी एक टाइप का प्लास्टिक ही होता है. और फिर ये मेटल से बना है, कॉपर मेटल से बना हुआ है. ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है. What are the advantages of having a lid and a top on the container? जब हम कोई भी कंटेनर को क्लोज करके रखते हैं तो क्या होता है, उसमें जर्म्स, बैक्टीरियाज, डस्ट वगैरह नहीं जाती. जो वाटर हमने ड्रिंकिंग के लिए स्टोर करके रखा है वो वाटर सेफ होता है
वो वाटर हमें प्योर वाटर मिलता है। Then let us start the lesson. It was all just the question introductory part. Now let us see the actual lesson. We need water all the time. We have to store water in house so that we can get it when we need it. Earlier, brass and copper pots as well as earthen pots were used to store water. ब्रास के मतलब येलो कलर का एक मेटल होता है, उसको कहा जाता है ब्रास। तो उसके कंटेनर्स बने हुए होते थे, उस कंटेनर में वाटर को स्टोर किया जाता था। ब्रास और उसके साथ साथ कॉपर के वेसल्स भी बहुत कॉमन थे। अभी आजकल भी हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन कम यूज़ करते हैं। पहले कॉपर के से बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते थे जिसमें वाटर स्टोर करके रखा जाता था। अभी आजकल हम डाइनिंग टेबल पर इतना छोटा सा कंटेनर रखते हैं, है ना, उसमें वाटर सिर्फ पीने के लिए। पहले लोग सारा ही वाटर, कुकिंग का वाटर, सारा ही वाटर उसमें ही स्टोर करते थे। अभी सिर्फ पीने के लिए वो कॉपर वेसल्स मिलते हैं छोटे छोटे, हम उसमें भर के रखते हैं और उसमें का वाटर यूज़ करते हैं। Ask your parents or grandparents for the names by which these different pots were known. People also built tanks in their houses to store water. Nowadays, steel or plastic is used to make different containers for storing water. पहले लोग ऐसे बड़े बड़े टैंक्स बनाते थे घर में या ऐसे कोर्टयार्ड में। मोस्टली तो सभी के घरों में एक छोटी सी वेल होती थी, उस वेल का ही वाटर यूज़ करते थे। फिर उसके बाद टैंक बनाने लग गए, फिर बड़े बड़े कंटेनर्स आ गए, उसमें यूज़ करते हैं, उसमें वाटर स्टोर किया जाता था। ना नेक्स्ट, केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को सेफ कैसे रखना है, ड्रिंकिंग वाटर को प्योर कैसे रखना है, उसकी केयर कैसे लेना है। To ensure good hygiene, we must have safe drinking water. If we consume contaminated water, it can cause diseases. अगर हम contaminated water ड्रिंक करते हैं, जो वाटर हम पीते हैं वो वाटर कैसे होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन एंड फ्री ऑफ जर्म्स, उसमें कोई जर्म्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा वाटर जो होता है उसको कहा जाता है प्योर वाटर या सेफ वाटर कहते हैं उसको। ओके, सो वी मस्ट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारा वाटर कैसे होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्री ऑफ जर्म्स। It should not have any kind of odor or smell or floating impurities. If we consume contaminated water, it can cause diseases. गंदा पानी पीने से या polluted water पीने से क्या होता है, diseases हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, stomach pain होता है और भी कुछ हो सकता है। That is why we take a special care of the water we store for drinking and cooking. इसीलिए हमेशा जो वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए या फिर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको हम कैसे रखते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा हम उसको कवर करके रखते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ऐड करते हैं या फिर मेडिक्लोर करके एक मेडिसिन मिलता है वो ऐड करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम ड्रिंकिंग और कुकिंग वाटर की केयर लेते हैं, उसको सेफ रखते हैं। वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर्स कवर्ड. This prevents dust and other rubbish from entering the water. If we dip our hands in the water to take it out, the dirt on our hands can enter the water. So we use a dipper to take the water and we replace the lid at once. फिर अभी मोस्टली तो क्या होता है कि सभी इसमें टैप होते हैं। ये देखो, ये प्लास्टिक कंटेनर है तो इसमें भी यहाँ पर तुम्हें टैप दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर एक प्लास्टिक का टैप दिखाई दे रहा। लेकिन अर्दन पॉट में वगैरह पहले टैप नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, एक यूटेंसिल लेते थे, कोई भी एक यूटेंसिल, और उससे ही डुबो कर लेते थे। तो बहुत लोगों को आज भी आदत होती है कि वाटर क्या करते हैं, वाटर टैंक में या वाटर कंटेनर में डायरेक्ट कोई भी वेसल उसमें डुबोते हैं और उससे ही वाटर पी लेते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जब हम वैसे मतलब कोई भी कंटेनर डायरेक्ट उसमें डुबोते हैं, जिससे हम उसका लीड ओपन करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जर्म्स जाते हैं, कभी डस्ट जाती है। हमारे हाथ अगर अनक्लीन है तो हमारे हाथों की भी डस्ट वाटर को लगती है और वाटर जो है वो कंटामिनेट हो जाता है, खराब हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। इसीलिए हमेशा पहले हैंड वॉश करना चाहिए, फिर वाटर लेना चाहिए।
जब भी तुम पानी पीते हो, चाहे तुम टैप से ले रहे हो, चाहे तुम ऐसे डिपर से ले रहे हो। डिपर मतलब क्या, एक वेसल होता है, देखो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला, ये देखो ये वाला, ये स्टेनलेस स्टील का, उसको एक हैंडल होता है और सामने से कप जैसे होता है, वो जो हैंडल होता है, हम उसको हैंडल को पकड़ के बिना वाटर को टच किए वो हम ले सकते हैं। लेकिन अभी आजकल मोस्टली क्या है कि सभी अर्दन पॉट्स में भी ऐसे ये आता है, ऐसे वाला टैप आता है, तो टैप की वजह से हमें उसको ऊपर का लीड निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डायरेक्ट हम टैप का वाटर, उस अर्दन पॉट का वाटर टैप ओपन करके ले सकते हैं। That is why we take special care of the water we store for drinking and cooking. We keep the drinking water containers covered. This prevents dust and other rubbish from entering the water. ड्रिंकिंग वाटर को क्लोज करके क्यों रखना चाहिए, ताकि उसमें कोई जर्म्स या बैक्टीरिया एंटर ना कर सके। If we dip our hands in the water to take it out, the dirt on our hands can enter the water. So use a dipper to take the water and we replace the lid at once. But the best method of taking water is to have a tap on the container. एक तो हैंड्स क्लीन होने चाहिए, तो कोई डिपर लेके वाटर लो, नहीं है तो सबसे बेस्ट मेथड तो क्या है कि हर एक जो भी वाटर कंटेनर है, ऐसे वाटर कंटेनर्स लेने चाहिए जिसमें टैप होता है। तो टैप ओपन करने से, लीड ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, टैप से डायरेक्ट वाटर हमें मिल जाता है। When the water in a container is finished, we wash the container well before refilling it. If we take such care, drinking water remains clean. जब भी देखो, तुमने देखा होगा मम्मी क्या करती है, जैसे कि एक दिन आज वाटर भरा ख़त्म हो गया तो दूसरी बार वाटर भरने से पहले उसको क्लीनली वॉश करती है, उस यूटेंसिल को अंदर से बाहर से क्लीन वॉश करती है, फिर उसके बाद उसमें फ्रेश वाटर हम भरते हैं। इससे क्या होता है, उसमें जर्म्स ग्रो नहीं होते, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ सेटल हुई है वो सारी इम्प्योरिटी भी उसमें से निकल जाती है, और जो वाटर हम नेक्स्ट टाइम उसमें स्टोर कर रहे हैं वो वाटर क्लीन वाटर बन जाता है, वो वाटर सेफ वाटर बनता है। ओके, अगेन देयर आर मेनी पॉइंट्स, रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स मेक टुमारो।